हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सो दिस वन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स and the again the easiest one, also not the easiest one, but it is also an easy chapter as far as the rest of 3 chapters are concerned of economics. Only thing is that you have to work out is on the length of this chapter. That means you have to cover a little bit more topics in this chapter, globalization. So now we are moving to this chapter globalization, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। अब आप वर्ड से एक आइडिया लगा सकते हैं, ग्लोब मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, and this phenomena which is known as globalization, that means we are talking about the interlinking of the world, interlinking of the different countries of the world. And when we say globalization in economy or economic term, it means we are talking about the trades which is going on between different countries. ठीक है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी, एंड पर्टिकुलरली वी हैव द फोकस ऑन द ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल अंडरस्टैंड द definition of globalization, which is very simple and explaining or underlining the same point which I was explaining. Globalization, it is a process of interlinking of the market. It is the process of interlinking, LINKING, interlinking of the markets of the world, different markets of the world. So it simply means globalization is a process which interlinks our different markets, our different countries and their markets. They are interlinked because of this process which is called globalization. So markets of the world, they are interlinked through what thing? Through international trade. तो हम दुनिया में अलग अलग मार्केट से कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे डोमिनोज का पिज्जा आपको इंडिया के हर शहर में उसकी एक ब्रांच मिल जाएगी। आप कॉल करेंगे व्हाट्सएप से या आप नॉर्मल कॉल करेंगे, आप अपना एड्रेस सेंड करेंगे एंड दैट पिज्जा वुड बी डिलीवर्ड टू यू एट योर होम। ठीक है, तो अब आप सोचिए डोमिनोज विच इज अ ब्रांड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका that has opened its branch in almost every country of the world, and this happened only due to this process which is known as globalization. ठीक है, तो हमें ये कंसेप्ट समझ आ गया कि इंटरनेशनल ट्रेड इज गोइंग ऑन ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड इट इज इंटरलिंकिंग द मार्केट. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और अब हम चैप्टर्स के टॉपिक वाइज इसको करना शुरू करते हैं. तो आपका ये जो थर्ड पॉइंट है, ये क्या कहता है कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी हैव सीन द बर्थ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. आई होप यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड मैनी टाइम्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और एमएनसीज. तो आप सुनते होंगे, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव जॉब कर रहा है, तो ही इज वर्किंग विद अमेरिकन एमएनसी और जर्मन एमएनसी और जापानीज एमएनसी. तो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी. अब इसका मीनिंग क्या है मल्टीनेशनल कंपनी? तो अ कंपनी दैट owns its production and controls its production across the countries or more than one country is called MNC. I am repeating it. A multinational company is a company that owns its production and controls its production in more than one country. तो एक कंपनी जो अपना प्रोडक्शन एक देश में नहीं कर रही है बल्कि कई देशों में कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एमएनसी. और वी हैव डिस्कस्ड this phenomena of globalization, ki how this globalization that has really boosted up in the 20th century, particularly second half of the 20th century. It means 20th century, that means 1900 to 1999 we are talking about. Second half यानी पहले 50 साल छोड़ के अगले after 1950s, this phenomena of globalization has really got a big boost due to several factors that we will discuss later on.
तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया है। अब जो एक कंपनी, सिर्फ एक देश, उसका मैक्सिमम लिमिट होता था, अगर आपने एक छोटी सी कंपनी खोली है तो आप ग्रोथ करते हुए पहले अपने शहर में, फिर अपने स्टेट में, फिर अपनी पूरी कंट्री में डोमिनेट करते हो। लेकिन अब वो डोमिनेंस का लेवल बढ़ गया। नाउ फ्रॉम वन कंट्री अ मल्टीनेशनल कंपनी इज ऑनिंग, controlling its production, dominating its production, not only its parent company जहां उसका जन्म हुआ है, but it is dominating all across the world. तो that is the MNC जिसको हमें समझना है। और आपको यह भी समझना है कि MNC and globalization, they are the two sides of one coin. You can use this line in any of your question. अगर आपसे MNC और globalization के बीच में इंटरलिंक पूछा हुआ है, तो MNC एंड ग्लोबलाइजेशन दे आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन है, उसी की वजह से MNC आई है, और MNCs जितनी आ रही हैं उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन कंप्लीटली और एक्सपेंड हो रहा है। तो दे आर व्हाट वी कैन कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम समझते हैं इस MNC की फंक्शनिंग को थ्रू आवर फर्स्ट टॉपिक, जेन्युइन टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड, and this is the topic how the MNCs control the production across the countries. ये आपका पहला टॉपिक बन जाएगा। अगर आप अपना सेकंड पेज देखेंगे बुक में तो उसमें भी लिखा हुआ है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज डन बाय द MNC। अब एक और चीज समझिए, ग्लोबलाइजेशन में हम सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कन्फाइंड ओनली विद द ट्रेड, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स। वी कैन ब्रॉडन इट that not only we are doing the trade of goods, we are doing the trade of services also. वो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सर्विसेज कैसे, जैसे किसी को अकाउंटिंग की सर्विस चाहिए तो दैट पर्टिकुलर कंपनी, नो मैटर इट बिलोंग्स टू विच नेशन, दे पर्टिकुलरली लुक एट इंडिया। अगर उनको इंजीनियरिंग की सर्विस चाहिए, उनको अपना कस्टमर केयर सेंटर सेटअप करना है, तो उनका पहला प्रेफरेंस इंडिया होता है, क्योंकि यहां पे आपको स्किल्ड इंजीनियर्स मिल जाएंगे, स्किल्ड जो इंग्लिश कमांडिंग जनरेशन है इंडिया में वो मिल जाएगी, जो उनको चीप रेट पे मिलेगी एज कंपेयर टू देयर कंट्री। तो इसका मतलब नॉट ओनली द गुड्स वी आर एक्सचेंजिंग थ्रू द ग्लोबलाइजेशन, वी आर एक्सचेंजिंग द सर्विसेज ऑल्सो। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर एक्सचेंज, ये हमें समझ आ गया। और तीसरी चीज जो आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझा रहा है कि अब कोई भी एक कंपनी ये नहीं कर रही है कि उसने अपना एक प्लांट लगाया एक अपने देश में, उसी में रॉ मटेरियल परचेज किया, उसी में मैन्युफैक्चरिंग की और फिर उसको एक्सपोर्ट किया। नो, व्हाट यू आर गेटिंग नाउ कि दीज मल्टीनेशनल कंपनी वो अपना जो प्रोडक्शन की अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अलग अलग उसमें प्रोसेस चलते हैं। सपोज आपको एक ऑटोमोबाइल कंपनी के आप मालिक हैं और आपने कार बनानी है, तो उस कार बनाने के लिए उस कार का डिजाइनिंग कहीं और पे हो रहा है, उस कार के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। उस कार से जुड़ी हुई कुछ और इंजीनियरिंग स्किल्स वो किसी और देश से इंपोर्ट की जा रही हैं, या किसी और देश से उसको यूज किया जा रहा है, और फिर उसका जो सारे कंपोनेंट्स को मिला के कार की शक्ल देंगे। जब हम उस ऑटोमोबाइल तक जब तक हम पहुंचेंगे तो वो प्रोसेस अलग अलग कंट्रीज में होगी। तो वी हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ एन अमेरिकन MNC टू प्रूव दिस पॉइंट, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाउ MNC कंट्रोल द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। तो जल्दी से आप इसका आंसर क्या देंगे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी और कॉर्पोरेशन अपना प्रोडक्शन जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्से में करके पूरा काम कंप्लीट करती है। तो कैसे करती है? सबसे पहले आप जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एन MNC। तो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। डिफाइन आप यहां से ऊपर से यही सेम उठा लेंगे। अ मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशन ऑन्स एंड कंट्रोल्स इट्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। देन यू विल फर्दर एक्सप्लेन कि वी कैन explain this topic through one example, that is the example of an American multinational company which is ITT, ठीक है। तो ITT is an American multinational company, how it controls its production in more than one country, which has been asked। आपसे ITT का तो नहीं पूछा, आपसे जनरल पूछा है कि
एक मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्शन एक से ज्यादा देशों में कैसे करती है, हाउ इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज और in more than one country. So we can prove this point through the example of an American MNC, that is ITT. Now what this company ITT is doing, this is related to, अब देखिए एक बड़ी जो कंपनी होती है वो मल्टीटास्किंग कर रही है, वो एक ही सेक्टर में नहीं है। जैसे आप रिलायंस को देख लीजिए तो वो एनर्जी के सेक्टर में भी है, वो अब आपके मोबाइल के सेक्टर में आ गई है, वो अब आपके रिटेल के सेक्टर में आ गई है। मतलब बड़ी कंपनी क्या सोचेगी कि उसको कोई भी फील्ड नहीं छोड़ना, सभी फील्ड में उसको डोमिनेंस करना है, तो वो अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो दिस इज ऑल्सो वन कंपनी विच इज नॉन आईटीटी एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है ये कंपनी। नाउ हाउ दिस कंपनी फंक्शंस, द फर्स्ट थिंग द डिजाइनिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, the designing of the products of computer products, hardware products, that is done in United States of America. So this company has one branch which is making the design of its products. अब जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कार बना रहे हैं, आप मोबाइल बना रहे हैं, आप टीवी बना रहे हैं, उसकी एक शेप भी तो देंगे, उसका वो एक पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव और कॉम्पैक्ट शेप देने की कोशिश करेंगे ताकि वो छोटे में भी बढ़िया भी लगे, अट्रैक्ट भी करे लोगों को, और पहले जितने भी स्टैब्लिश्ड गुड्स आइटम्स हैं उस फील्ड में उससे अलग भी लगे। तो नाउ व्हाट दिस कंपनी डज, इसको आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। एवरी पॉइंट विल कंटेन 2 to 3 लाइंस मिनिमम। सो दिस आईटीटी कंपनी डज द डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स गुड्स in the United States of America. Now question comes, why USA? Because the best designers are available in the United States. और किसी भी गुड के लिए जो पहली चीज होती है वो उसका डिजाइन होता है। आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका डिजाइन देखते हैं कि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। So the designing is done of this MNC ITT in United States of America because of the best facilities for designing that are available in United States. Then after designing is being done कि भाई ऐसा दिखेगा आपका प्रोडक्ट, अब इसको कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना है, इसके अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं। तो दिस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन चाइना। नाउ व्हाई चाइना? वी ऑल नो दैट चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग इंजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है किसी कंपनी को तो उसका फेवरेट डेस्टिनेशन चाइना है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द चीप लेबर एंड स्किल्ड लेबर एंड बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द चाइना। सो components they are manufactured for this company in China due to the cheap and skilled labor availability. तो उससे क्या होगा, अगर वो अमेरिका में बनाएंगे, अपनी लेबर को वहां लगाएंगे, वहां पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कंपोनेंट्स का, तो लेबर महंगी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा पड़ेगा और उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए, कम करने के लिए ये कंपनी क्या देख रही है कि डिजाइनिंग कहां पे उसको अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो वहां करवा रही है। फिर वो देखती है कि डिजाइनिंग हो गई, अब इसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना है, वो कहां सस्ता पड़ेगा। देन इट ओपन्स अनदर plant in China and starts the production of the components. After the components are produced, then these components they are taken to Mexico and Eastern Europe, where these different components are assembled together. उनको आपस में जोड़ा जाता है, assembling की जाती है। So assembling of these components are done in Mexico and Eastern Europe because through the Mexico the market is United States of America where they can sell it. तो components को assemble करने के बाद उन्हें बेचने का काम है, तो that is done in America and Canada through the Mexico. In the same way, after these assembling is done Eastern European countries, then they are sold in the European market. And the last and the final one is the customer care center. So skilled engineers are available in India at cheaper rate as compared to United States of America. अगर यहाँ पे आपका इंजीनियर 50,000 रुपीज ले रहा है तो हो सकता है अमेरिका का जो इंजीनियर है वो आपसे $50,000 मांगे। तो उस कॉस्ट कटिंग को भी कम करने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए द कस्टमर केयर सेंटर हैज बीन सेट अप इन इंडिया, वेयर द स्किल्ड इंजीनियर्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड स्किल्ड एज वेल एज
good command in English. That is the very what we can call it speciality of Indian people. They are well versed with this international language with the American accent, same American accent or English European accent. So that's why the customer care centers have been set up in India, and the name of the city is Bengaluru. So in the end, how you will sum up this topic? By doing this, by opening up different plants in different countries, the American MNC ITT is able to cut its cost about 50%. और जब आपकी कीमत कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर आपका इनपुट कम लग रहा है तो आपके आउटपुट ज्यादा कमाने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो आप कर सकते हैं. सो दिस ITT is reducing the cost up to 50% and earning more and more profit. प्रॉफिट भी कमाएगी और मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस भी रखेगी ताकि इसके कॉम्पिटिटर सारे हट जाएं. तो दिस इज द entire process through which an MNC controls its production across the country. I hope you understood it. This is the diagram also. You can call it this American company ITT, or designing done in USA, components manufactured in China, assembling is done in Mexico and Europe, and customer care center has been set up in India. So I hope you understood this. Thank you. And then we are moving to the video number 2 for the next topic.